Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and I am working as Assistant Professor in the Department of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization hearing impairment. The course code is 4133 SPED, and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Investigation as Teaching Method. In today's lesson, we will discuss investigation as a teaching method, and first of all, we will discuss the nature of investigation as inquiry. The investigation teaching method is closely related with the inquiry, and it engages pupils in active learning to explore a particular topic or problem. Investigations may be related to inquiry-based learning and sometimes used synonymously, but we would normally consider inquiry-based learning more open-ended, involving higher-order reasoning and perhaps high-level dialogue in group work contexts, wherein investigations such as group talk might be more closely directed by the teacher. So, investigation and inquiry both are closely related with each other. However, the only difference is that the group talk in investigation is directed by the teacher, while group talk in the inquiry method are led by the students themselves. There is less role of teacher in inquiry method, while in investigation the teacher has more role to control the class and the group work. For the many educators who are not, it is a learning and teaching method that prioritizes student questions, ideas and analysis. So basic जो point है investigation का, that is developing the skill of asking questions and ideas and analysis in the students. To highlight the pedagogy's nuances, it is important to define inquiry-based learning from both a learner and teacher perspective. So इस लेसन में हम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा फोकस हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर करेंगे बिकॉज ये एडवांस्ड फॉर्म है और ज़्यादा यूज़ होती है मैथ्स और साइंस में. और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की दो तरह से पर्सपेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, लर्नर की साइड से भी और उनका टीचर का पर्सपेक्टिव भी. तो दोनों तरह से हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को डिस्कस करेंगे. फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, inquiry based learning focuses on investigating an open question or problem. There must be evidence based reasoning and creative problem solving to reach a conclusion, which they must defend or present. So students के point of view से inquiry based learning जो है वो एक open ended question की तरफ और ऐसे problem को resolve करने के लिए की जाती है. और ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इसका एविडेंस बेस्ड रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें यूज़ होनी चाहिए टू रीच द सॉल्यूशन. और इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स उसको डिफेंड कर रहे हो उस क्वेश्चन को और प्रेजेंट कर रहे हो इन द फेवर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो इस तरीके से इसकी जो सारा प्रोसीजर है इसकी क्लासरूम का वो चलता है. फ्रॉम अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, inquiry-based teaching focuses on moving students beyond general curiosity into the realms of critical thinking and understanding. You must encourage students to ask questions and support them through the investigation process, understanding when to begin and how to structure an inquiry activity.
सो टीचर का रोल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग इन्वेस्टिगेशंस को इन्हेंस करना है। जितना ज़्यादा टीचर्स इन्वेस्टिगेशंस को अपने क्लासरूम के अंदर इन्हेंस करेंगे और उस इतनी ज़्यादा उनकी क्लास इंक्वायरी बेस्ड होगी। इन्वेस्टिगेशंस को इन्हेंस करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड टीचर्स बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं दैट इज़ ऑफ क्वेश्चनिंग, रेलिवेंट क्वेश्चनिंग, और जो अप्रोप्रिएट हो क्वेश्चंस उनको पूछना बच्चों को जो है वो सिखाना चाहिए और इस कल्चर को स्प्रेड करना चाहिए क्लास में कि स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस रेज करें एंड देन इन द गाइडेंस ऑफ द टीचर दे हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। Now there are 4 types of inquiry based learning which become decreasingly structured and suit different classrooms. So different तरह से 4 इसकी types आ रही हैं जिसमें इनको ये decreasingly structured होती जाती हैं और उसी तरह से उनके वो क्लासरूम में स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता जाता है और डिफरेंट क्लासरूम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी सूट करती है। टीचर जो है उसको डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सब्जेक्ट मैटर कि उसने किस टाइप ऑफ इंक्वायरी बेस्ड को यूज़ करना है अपने क्लासरूम में। फर्स्ट वन इज़ कंफर्मेशन इंक्वायरी। यू गिव स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन, इट्स आंसर and the method of reaching this answer. Their goal is to build investigation and critical thinking skills, learning how the specific methods work. So इस टाइप ऑफ जो इंक्वायरी है इसमें टीचर्स कंफर्मेटरी तौर पर बच्चों को आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनको पाथवे भी गाइड कर रहे होते हैं कि वो उस आंसर तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं और बच्चों का गोल जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को बिल्ड ऑन करना और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स की क्लास में अगर आप बच्चों को कोई ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो क्वाइट न्यू है लेकिन आप उसके साथ साथ उसका आंसर और उसमें जो बेसिक फार्मूला या कोई बेसिक जो स्ट्रेटजी उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होनी है वो भी बच्चों को गाइड कर देते हैं और लेटर देन के वो बच्चों ने खुद फिर उसको बैठकर सॉल्व करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंफर्मेशन इंक्वायरी। The next type of inquiry based learning is structured inquiry. You give students an open question and an investigation method. They must use the method to craft an evidence-based conclusion. So in this type of inquiry, teachers provide open question to the students and also guide about the basic investigation method they can use in order to find out the solution of that question. And the students use method to craft an evidence based conclusion. So find out करने के लिए उसका solution, उसका conclusion जो है वो evidence based होना चाहिए और बच्चे उस evidence को तलाश करते हैं, उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है और उसके पीछे उसके सोल्यूशन के पीछे उसकी एविडेंस क्या मिल रही है। तो ये सारा काम बच्चों ने खुद करना होता है। तो पीछे जैसे हमने कंफर्मेटरी इंक्वायरी में देखा कि टीचर आंसर भी प्रोवाइड कर रहा होता है क्वेश्चन का, अनलाइक दैट स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी में आंसर टीचर की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं होता बल्कि सिर्फ क्वेश्चन ओपन जो है वो टीचर की तरफ से किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन मेथड के बारे में गाइड किया जाता है टीचर स्टूडेंट्स को कि कौन से इन्वेस्टिगेशन मेथड को या स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वो इस क्वेश्चन को इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। The third type of inquiry is guided inquiry. You give students an open question, typically in groups. They design investigation methods to reach a conclusion. So decreasingly dependent होते जा रहे हैं students अपने ऊपर और टीचर के ऊपर डिक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रहे हैं और अपने ऊपर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता टीचर का रोल जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कम होता जा रहा है। गाइडेड इंक्वायरी में टीचर सिर्फ ओपन क्वेश्चन करता है और उसमें उसके बाद ग्रुप्स को फॉर्म कर दिया जाता है।
ग्रुप्स वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, और उसमें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को खुद से प्लान करते हैं, खुद ही डिज़ाइन करते हैं और ख़ुद ही उसको कैरी आउट करते हैं और उस तरह से वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। सो इसमें जो कंक्लूजन में गाइडेड इंक्वायरी में बच्चे जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका यूज़ करते हैं वो बच्चे खुद ही उसको डिसाइड करते हैं, खुद ही उसको चूज़ करते हैं और डिज़ाइन भी खुद करते हैं। सो ये काफ़ी हद तक बच्चों पर डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Fourth and last type of inquiry based learning is open inquiry. You give students time and support. They pose original questions that they investigate through their own methods and eventually present their results to discuss and expand. So ये totally different type of inquiry है जिसमें even जो question है that is not being posed by the teacher but instead students जो हैं वो अपने previous काम से जो उन्होंने अपने original questions खुद raise किए होते हैं उनको यूज़ करते हैं। टीचर जो है वो उनको सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, उनको अप्रोप्रिएट टाइम और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसमें भी प्रीवियस की तरह से बच्चे अपने इन्वेस्टिगेशन मेथड को खुद से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने रिज़ल्ट्स को डिस्कस करते हैं, आंसर्स को डिस्कस करते हैं और फर्दर उस आइडिया को एक्सपेंड किया जाता है। सो इसमें जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली डिपेंडेंट होती है स्टूडेंट्स के ऊपर और टीचर सिर्फ उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और अनटिल अनलेस के अगर ग्रुप जो है वो टोटली किसी और डायमेंशन में जा रहा है तो वहाँ से टीचर उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब एक लाइन में रहते हुए बच्चे काम कर रहे होते हैं तो टीचर उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है और सारा काम जो है उसके सोल्यूशन का वो स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं। After discussing 4 different types of inquiry based learning, now we will discuss overall characteristics of inquiry based learning. प्रोसेस फोकस होते हैं जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को खुद से और एंड दे आर इंटरनलाइजिंग द कॉन्सेप्चुअल प्रोसेसेस एंड इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग प्रायोरिटाइजेस प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। सो इसमें आपने देखा है कि जितने भी हमने चारों टाइप्स को देखा है उसमें फोकस प्रोसेस लर्निंग के ऊपर होता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट लर्निंग, यानी आंसर ठीक होना या ना होना मैथ्स में वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता इंक्वायरी बेस्ड प्रोसेस के अंदर या इस टीचिंग मेथड के अंदर, बल्कि बेसिक पर्पज़ ये होता है कि बच्चों को इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड द टीचर में पोज अ प्रॉब्लम डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास कंटेंट और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स देन इन्वेस्टिगेट द इशू टू फाइंड आउट द आंसर। सो टीचर अगर क्वेश्चन प्रोवाइड भी कर रहा होता है, जैसे हमने फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में देखा है, ऑल्दो के जो लास्ट हमने 4th वन ओपन इंक्वायरी को डिस्कस किया है उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी खुद से पोज कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों इंक्वायरी की टाइप्स हैं उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन पोज नहीं कर रहे होते बल्कि टीचर कर रहा होता है। तो उसमें जो है ये कि टीचर अगर क्वेश्चन पोज करता भी है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है इन्वेस्टिगेशन की वो ह्यूजली प्रेजेंट होती है इस मेथड के अंदर और बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर रहा होता है इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की दैट इज़ ऑफ ग्रुप लर्निंग as the students are working in pairs or small groups in while they are working in inquiry based learning, so they are exploring the problem together and students assist one another throughout the learning process, which enables them to share and build upon ideas as well as articulate how they arrived to a solution.
सो इसमें बच्चों की आपस में ग्रुप वर्क जो है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हर बच्चा अपना इनपुट दे रहा होता है और दूसरा उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है। वो अपनी मिस्टेक्स को भी सेल्फ करेक्ट कर रहे होते हैं इस काम के दौरान, और अपने सोल्यूशन जब वो फाइंड आउट कर लेते हैं अगर कोई भी, तो उसमें वो उस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो पाथवे उन्होंने चूज़ किया होता है उसे भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, उसे एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर दो बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है मैथ का, तो उसके बाद जो है वो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स 4 मेंबर्स हैं सपोज़, तो वो जो हैं वो अनअवेयर होंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे हमने फाइंड आउट किया है, बल्कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंक्वायरी कि जब एट द एंड सोल्यूशन हमें एक्वायर हो जाता है तो वो तमाम ग्रुप के बच्चों को इक्वली उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और वो पीयर्स एक दूसरे के साथ खुद से करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और उसके जो फाइंड आउट किया होता है उन्होंने सोल्यूशन, उसके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस टोटल जो है वो सारे बच्चों को समझ आ जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कशन मॉनिटरिंग। एज द स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, द टीचर कैन मूव फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप listening to their discussions. Teachers may ask questions to gauge students' understanding and correct any misconceptions. So here we are talking about the teacher's role while the class is working through the inquiry-based learning. The teacher may walk around in the class from one group to another group, and during this walk he is listening to the discussion which students are holding in the group. जो भी बातचीत आपस में बच्चे कर रहे होते हैं उनको टीचर सुन रहा होता है, और उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि अगर वो टोटली कहीं गलत साइड पर जा रहे हैं तो उनकी मिसकंसेप्शंस को करेक्ट करने के लिए वो इनको इंटरप्ट कर सकता है, और उसमें वहाँ पर उनको वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है। Next characteristic is real life application. Students solve math problems that have a meaningful life application. For example, a teacher may present a multiplication problem as an interesting story. Brittany has 2 bags of candy. Each bag has 4 candies inside. How many candies does Brittany have altogether? So इस तरह से जो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक स्टोरी प्रेजेंट की जा रही होती है, तो उसमें उससे बच्चों का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो टीचर जो है वो प्रॉब्लम किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो इस तरह से टीचर एक स्टोरी के थ्रू प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है और बच्चे जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सो उनकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है टीचर का प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने का, वो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ उनको रिलेट करके इंट्रोड्यूस करवाना होता है क्लास के अंदर, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैथ्स टोटली कोई एलियन सब्जेक्ट है, बल्कि वो उसको ठीक तरीके से समझ सकें कि वो किस तरह से उनकी क्लास में भी और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी रिलेटेड है, और किस तरह से वो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Now teaching students how to question, because this is a very important skill which teachers has to teach to their classroom, and if the students will get this opportunity that how they can ask questions in the classroom, they will get benefit from the investigation method and inquiry based learning. Ask big questions that have more than one answers. सो स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो एक बड़ी नेचर का होना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा आंसर्स फाइंड आउट किए जा सकते हों और फिर उसमें से अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट किया जा सकता हो। थिंक अबाउट हाउ टू मॉडल क्वेश्चनिंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ ग्रेड लेवल्स। तो टीचर टीचर बच्चों को ये सिखा रहा होता है कि किस तरह से वो डिफरेंट अपने ग्रेड लेवल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पोज कर सकते हैं। वन थिंग मोर इज़ के क्वेश्चंस हाउ टू टीच फॉर द आस्किंग क्वेश्चंस। तो इसमें टीचर ने जो खुद टीचर क्वेश्चंस पोज कर रहा होता है क्लासरूम के अंदर, बच्चे उसी स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर कोई टीचर जो है वो क्लास में बच्चों से कोई किसी तरह का क्वेश्चन पोज नहीं करता, तो उस क्लास में ये कल्चर भी डेवलप नहीं होता कि बच्चे खुद से क्वेश्चन पोज करेंगे। सो टीचर का स्टाइल जो है उसको स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो अगर एक टीचर बिग क्वेश्चन आस्क करता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स उसके आगे बनते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती हो,
और बाद में स्टूडेंट्स भी उसके मेथड को फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो टीचर है उसे ग्रेड लेवल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए और इस तरह से मॉडल करने चाहिए क्वेश्चंस जिसको ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। फ्रेज योर क्वेश्चंस इन अ वे दैट फोस्टर्स इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशंस, यानी आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि जो आपने जो कुछ भी आपने पूछा है मैथ के बारे में उसमें बच्चा खुद से अकेला भी एक्सप्लोर कर रहा हो कि उसको क्या आंसर किया जा सकता है। यानी एक तरफ तो वो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें बच्चे ग्रुप में उसका आंसर मिलकर दे सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन जब तक नहीं होगी तो उसमें ग्रुप में उसकी इनपुट नहीं होगी। अगर हर बच्चा खुद से उसका आंसर तलाश करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा होगा, इंडिविजुअल इनपुट नहीं दे रहा होगा, तो ग्रुप आउटपुट जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। सो ग्रुप आउटपुट को और फाइनली सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए हर बच्चे की तरफ से इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन आनी ज़रूरी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है क्वेश्चन पोज करने की। Like an inquiry-based classroom discussion helps learners understand the concept of slope. The teacher draws a picture of two hills, one taller and one longer. The teacher asks which hill is steeper. The question may stimulate a lively discussion or a debate about the correct answer. सो इस सिचुएशन में आपने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो हिल है उसकी पिक्चर स्टीपर ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए बच्चे जो है वो अपने डिस्कशन को स्टिमुलेट करेंगे और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। Now we will discuss benefits of inquiry-based learning. Inquiry-based learning reinforces curriculum content. When a concept sparks curiosity, there is increased activity in hippocampus, the region of the brain responsible for memory creation. So हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि मेमोरी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो उसमें वो तब हमारा एक्टिवेट होता है जब हमारे क्वेश्चंस में क्यूरियोसिटी होती है। तो जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि बच्चों का जो हिप्पोकैम्पस है वो स्टिमुलेट हो और उनकी मेमोरी क्रिएशन अच्छी हो। When students show more curiosity than normal regarding a specific topic, situate it by using their questions to introduce an inquiry activity in the coming days. So initially when teacher is successful in introducing curiosity in the brains of students and they have sufficient level of curiosity, then the teacher should use that situation in order to create their questions and introduce new inquiry activities in the future. तो बच्चों को की क्यूरियोसिटी के लेवल्स को पॉजिटिवली फिर टीचर ने यूज़ करना होता है कि वो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए उनको एक प्रॉपर डायमेंशन दी जाए और एक इन्वेस्टिगेशन मेथड उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर एक प्रॉपर क्यूरियोसिटी बच्चों में डेवलप होती है और उसके बाद टीचर इज़ अनएबल टू यूज़ दैट क्यूरियोसिटी इन द पॉजिटिव वे टू इंट्रोड्यूस द इंक्वायरी एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, देन द स्टूडेंट्स विल नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशंस एंड द स्टूडेंट्स विल बी डिसअपॉइंटेड। क्यूरियोसिटी का जब आंसर्स नहीं मिलेंगे बच्चों को तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो इस डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि क्यूरियोसिटी के लेवल को पॉजिटिवली टीचर फ़ौरन से यूज़ करे और उनको न्यू एक्टिविटीज़ के अंदर जो इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़ हों उनमें उन बच्चों को इंक्लूड करें। सेकंड इसका बेनिफिट मेजर जो है दैट इज़ वार्म्स अप द ब्रेन फॉर लर्निंग। क्योंकि इसमें एक्टिविटी बेस्ड आप बच्चों को काम करवा रहे होते हैं तो सो एन ईजी वे टू इंस्पायर क्यूरियोसिटी इज़ बाय लॉन्चिंग एन इंक्वायरी एक्टिविटी एज अ सरप्राइज़। ठीक है, तो सरप्राइज इनिशियल जो एक्टिविटी होती है वो टीचर प्रोवाइड कर रहा होता है बच्चों को। रिलेटेड टू अ रीसेंट टॉपिक स्टूडेंट्स फाउंड स्पेशली इंटरेस्टिंग,
begin a lesson by playing a video or sharing a primary source document, then give students an open question to answer either individually or as a group. So जो बच्चों ने previous काम किया है, कोई भी जो interesting उनको previous knowledge मौजूद है, उसको यूज़ करें। और या जैसे आप कोई वीडियो प्ले कर देते हैं, कोई पुराना डॉक्यूमेंट बच्चों से शेयर करते हैं, लास्ट लेक्चर का या कोई यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसको रेफ़र करते हैं, वहाँ से दोबारा बच्चों को इनिशिएट करवाते हैं लेक्चर को, और उसके बाद न्यू क्वेश्चंस को पोज करते हैं। तो जब उनका न्यू क्वेश्चन बेस कर रहा होगा प्रीवियस लर्निंग के ऊपर, तो डेफिनेटली उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होगी और वो उस नए आंसर क्वेश्चन को के आंसर को तलाश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। They will help start lesson in a curiosity sparking, intellectually stimulating way. So जब आप उसके previous lesson को बेस बनाएंगे तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा क्यूरियोसिटी में काम करेंगे क्लास में, और इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे और ज़्यादा अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देंगे उस नए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। Third major benefit of inquiry-based learning is that it promotes a deeper understanding of the content. So surface level की understanding नहीं provide कर रहा होता investigation method, बल्कि बड़ी deeper understanding provide कर रहा होता है, because इसमें students जो हैं वो actively involve होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो learning का इसका element है वो बच्चों पर depend कर रहा होता है। This is because the process of asking open questions, solving them through original strategies, empowers students to take ownership of their learning. तो जब बच्चे खुद लर्न कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग कंटेंट की तरफ डेवलप होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजीज़ खुद से डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं या टीचर की गाइडेंस में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इस तरह से उनकी सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इंक्रीज़ होती है बच्चों की, और वो ज़्यादा अच्छा सेंस ऑफ ओनरशिप उनमें डेवलप होती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डीपर डेवलप होती है। Fourth benefit is that inquiry based learning helps make learning rewarding. क्योंकि बच्चे इसमें ऑनरशिप ले रहे होते हैं अपनी लर्निंग की, तो उस तरह से एक तो वो इट्सेल्फ उनके लिए एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड होता है बच्चों के लिए। इट शोज़ स्टूडेंट्स हाउ फुलफिलिंग द एक्ट ऑफ डिस्कवरी इज़, क्योंकि जब वो कोई नया आंसर डिस्कवर करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए, अपने मेथड को यूज़ करते हुए, तो वो उनके लिए बड़ा सेल्फ फुलफिलिंग होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। एंड दैट थियोराइजिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी और ओरिजिनल कंक्लूजन इज़ अ रिवॉर्ड। Because of this, they grow to enjoy the learning process itself, not parent और teacher approval. तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो अपने जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की होती है उसको वो रिवॉर्ड के तौर पर लेते हैं, और उसे कमिंग सोल्यूशंस जो उन्होंने फाइंड आउट करने होते हैं उसके लिए भी एक टूल के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिपेंडेंट होते जाते हैं टीचर के अप्रूवल से या पेरेंट्स के अप्रूवल से। This means that student appreciation for learning can improve with a simple inquiry exercises. तो वो उनकी appreciation increase होती जाती है और वो ज़्यादा motivated होकर काम करते हैं। The fifth benefit is that it builds initiative and self-direction. इनिशिएटिव लेने की जो आदत है वो बच्चों में डेवलप होती है, उनकी सेल्फ डायरेक्शन की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है व्हेन वी आर यूजिंग इन्वेस्टिगेशन इन आवर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बिकॉज स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द आंसर्स एंड कोलैबोरेट कोऑपरेट विद ईच अदर। जब वो ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही होती हैं। ऑल्दो दे कैन सेपरेटली बिल्ड दीज स्किल्स थ्रू अदर एक्टिविटीज़ like self-guided inquiry and analysis synthesis this development. बच्चे जो हैं जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो उनकी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की वजह से वो अपनी बहुत सी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और स्पेशली जो उनकी इनिशिएटिव लेने की आदत होती है और खुद को डायरेक्शंस देना और कंट्रोल करना अपनी एक्टिविटीज़ को, ये बच्चे सीख रहे होते हैं। वर्क्स इन ऑलमोस्ट एनी क्लासरूम। इंक्वायरी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर तरह की क्लासरूम में यूज़ हो रही होती हैं।
This is because you can adapt the pace and content to suit the needs of the students. अगर आपकी क्लास में स्पेशल नीड्स के साथ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट नीड्स के साथ स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी पेस और कंटेंट के अकॉर्डिंग आप इस मेथड को अडेप्ट किया जा सकता है. अपील टू स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल टू ग्रैस्प कंटेंट थ्रू ट्रेडिशनल लेसन्स. क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में होते हैं, जो ट्रेडिशनल लेसन्स लाइक लेक्चर मेथड वगैरह के थ्रू अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता, तो उन ऐसे बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी अपील करते हैं, उनके लिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और वो एक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं इस मेथड को, ताकि वो खुद से आंसर्स को एक्सप्लोर कर सकें. क्योंकि अगर उनको टिपिकली टीचर के बताए हुए मेथड से समझ नहीं आ रही, जो कि ट्रेडिशनल लेसन्स होते हैं या ट्रेडिशनली कोई मेथड यूज़ किए जा रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो इसमें ये होता है कि जब बच्चे एक्टिवली यूज़ करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस मेथड में, तो उनके लिए नए कंटेंट को ग्रैस्प करना ज़्यादा इजी हो जाता है. डिलीवर एक्सरसाइजेस दैट ग्रेटली डिफर यूजिंग डिस्टिंक्ट कंटेंट एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स. सो इसमें जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंटली. तो किसी एक ही तरह के कंटेंट के लिए नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, बल्कि डिफरेंट कोई भी किसी भी तरह का मैथ्स का क्वेश्चन है, लाइक मैथ का जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो उसमें से किसी भी तरह का टाइप का कोई क्वेश्चन आप दें तो उसके लिए इंक्वायरी को एज अ लर्निंग मेथड यूज़ किया जा सकता है. यूज़ एन इंक्वायरी एक्सरसाइज एज आइदर अ माइंड्स ओन एक्टिविटी, रिव्यू फुल लेसन और स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. तो इंक्वायरी एक्सरसाइजेस को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है. जो रिव्यू की क्लासेस होती हैं उनमें भी इंक्वायरी को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और डिफरेंट जो सब्जेक्ट इंडिविजुअली अगर टीचर्स स्टूडेंट्स को देते हैं, अनाउंस करते हैं, तो वो जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इंक्वायरी बेस्ड हो सकते हैं. रीइंफोर्स एंड एक्सपेंड अपॉन एनी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट as long as students have shown curiosity towards it. तो जब तक कि बच्चों की क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होती तब तक आप उस लेसन को, उस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पर बच्चों को रीइंफोर्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. So in these ways you will have the flexibility to provide inquiry exercises to the majority of your classes year after year. तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसके थ्रू. सेवंथ बेनिफिट इज़ दैट इट ऑफर्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. क्योंकि इसमें डिफरेंट आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे मौजूद होते हैं और उनका लेवल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है हर तरह से. तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये मेथड जो है इन्वेस्टिगेशन का ये अप्रोप्रिएट होता है. Students can work by themselves as or part of a small or large group. Inquiry itself typically involves methods such as discussion and guided research. You can also provide content in form of text, audio, video and virtual or physical manipulatives such as building blocks. तो किसी भी तरह के जो AV aids होते हैं मैनिपुलेटिव्स वो क्लासरूम में यूज़ किए जा सकते हैं. और इसमें एक जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसमें सिर्फ कोई एक ही स्पेसिफिक तरीक़ाकार नहीं होता, बल्कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ उसके अंदर यूज़ की जा सकती हैं. जैसे डिस्कशन है, गाइडेड रिसर्च है, तो बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर यूज़ की जा सकती हैं और ये हेल्प करता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में. ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो हर तरह के बच्चों को सूटेबल होती हैं. डिलीवरिंग अ रेंज ऑफ कंटेंट एंड वेज to process it. Inquiry activities can allow you to meet your students' distinct learning needs and preferences. So बच्चों की जो learning needs हैं, जो specific learning needs हैं, उनके अकॉर्डिंग टीचर उनको मीट कर सकता है और बच्चों की जो प्रेफरेंसेस और उनके जो प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने इजी वे में जो उनके लिए अप्रोप्रिएट जो उनका अपना लर्निंग का मेथड है उसके थ्रू लर्न कर सकें. क्योंकि इसमें टीचर का रोल कम होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में और स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है. तो टीचर जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है वो इतनी टू द पॉइंट हो कि बच्चे अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हों. सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. Thank you very much for your listening, and the forum is open for questions.
Thank you.